ये नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं. This is topic called as the functions. Function is a new topic for you because you have already worked on certain functions, but those are not the user defined functions. In your last classes you have used so many standard functions. Before we go to deep understand what is a function, how it's work and how we can create it, let's just summarize what you know. A function is a subtask and that you have already done. For example, suppose you have to be calculate the power. Then in a Python you just use a simple function called as a power, and using this function you can compute the power of a given number. See, suppose I have to be calculate 2 raised to 3. When I going to run this, it will return you 8. So functions are the name of a something that is you can call as a task, and this task is performing something. See, in this example your task is to calculate the power. So you have already used functions, but you didn't know how it was working and how it's going to be execute. तो चलिए हम सीखते हैं कि फंक्शंस बनते कैसे हैं, फंक्शंस का काम क्या है और फंक्शंस को हम कैसे प्रोग्रामिंग में पाइथन में बना सकते हैं. सबसे पहले हम समझते हैं कि फंक्शंस की हमें रिक्वायरमेंट ही क्यों है. देखिए, प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिनको कई बार हमें रिपीट करना पड़ता है, और जब हम इनको रिपीट करते हैं तो सेम कोड को दोबारा लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का, तो एरिया एक आप फंक्शन बना सकते हो जो डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रीज के लिए अलग अलग काम करे. जैसे टिग्नोमेट्री के लिए आप फंक्शन बना सकते हो एरिया, जो आप जैसे अगर आप 2D डायग्राम है, अगर 3D है तो वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हो, तो 3D डायग्राम्स के लिए वॉल्यूम के लिए कॉमन फंक्शन बना सकते हो. तो वॉल्यूम निकालने के कुछ सर्टेन कॉमन स्टेप्स होते हैं. सो लार्ज प्रोग्राम कैन बी, यू कैन से कि ब्रेक अप. हम क्या करते हैं, हमारे पास जैसे ही हमें कोई प्रॉब्लम मिलती है तो वी स्टार्ट टू डिवाइड आवर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर यूनिट्स एंड वी समटाइम कॉल्ड एज ए फंक्शंस. जैसे हम स्कूलिंग में पढ़ते हैं तो स्कूल में जब हम आते हैं पीरियड्स को आप एक फंक्शन समझ सकते हैं कि रोज एक नया फंक्शन. मीन्स स्कूल में आते हैं, पर्टिकुलर क्लास में जाते हैं तो पर्टिकुलर डे पे रोज हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मिलता है. तो हमने अपनी बड़े प्रॉब्लम को कि स्कूलिंग कैसे की, उनको 8 पीरियड्स में डिवाइड किया हुआ है, तो इनको हम फंक्शंस बोल सकते हैं. और इन सिंपल यू कैन से कि हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स को कुछ नाम दे दें और उन नाम को एक कॉमन नेम से डेजिग्नेट करें तो उनको हम फंक्शंस बोलेंगे. सो this functionality help to modularization of our program. We can divide our program in a something called as modules. We can divide our problems. In normal life, what we have to do, suppose we have any problem, so how we can solve this problem? First we have to divide that problem and then find the individual solution of these problems, and then we in lastly we can combine all these solutions to find a concrete and final solutions. So in a program we can call it as a module because it's performing certain task. When we will do the programming, you will be clear what is the your function and how it's working. Just see, suppose if I compare this function to your mathematical functions, so you know, suppose there is a function fx, and when we are putting the value of x, then you will find a different value. So in a programming, we can say we have to be module our program, and to module our program we have to be use functions. Some of the functions you have already used, and this is called as the built-in functions. Some of, not the all, some of. जैसे पावर हो गया, आपने मैथ फंक्शंस में बहुत सारे यूज किए, रैंडम फंक्शन है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिनको आप यूज कर चुके हो. जैसे स्ट्रिंग में आपने बहुत सारे फंक्शंस यूज किए, लिस्ट में यूज किए, टपल में यूज किए, ये सारे बिल्ड इन फंक्शंस थे. ये बिल्ड इन फंक्शंस एक फाइल में स्टोर होते हैं जिसको हम मॉड्यूल बोलते हैं. ठीक है.
हम जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, तो हमने उनको एक फाइल में स्टोर किया हुआ है और उस फाइल को मॉड्यूल कहते हैं। सो फंक्शंस को जब हम किसी फाइल में स्टोर कर देते हैं तो वो मॉड्यूल्स कहलाते हैं। सो आप लोगों के पास बिल्ट इन फंक्शंस तो आपने यूज कर लिए, अब हमको सीखना है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। So user defined functions, those are defined and used by the programmer itself. Let's discuss some of the advantages of these functions. कि हमें functions बनाने का requirement ही क्यों हुआ? Functions is programs are easily to handle. जब हम चीजों को टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता रहता है कि हमारा कौन सा पार्ट क्या काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये इजीली हैंडल हो जाता है। लाइन ऑफ कोड जो है वो कम हो जाता है क्योंकि रिपीटेशन को हम फंक्शन से कम कर देते हैं। जहां एक ही टास्क को बार बार लिखने की जगह हम सिर्फ फंक्शन का नाम लिख देते हैं, तो इसकी हेल्प से हम रिपीटेशन ऑफ टास्क कम कर देते हैं और हमारा कोड जो है वो छोटा हो जाता है, हमारा प्रोग्राम का साइज जो है छोटा हो जाता है। इजी टू अपडेट, इजी टू अपडेट मीन्स मान लीजिए आपने कोई नई चीज ऐड की अपने प्रोग्राम के अंदर और सडनली आपको उसको चेंज करना है, तो आप पूरे प्रोग्राम को चेंज ना करके उस न्यू कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फंक्शंस को ही चेंज करेंगे, ना कि पूरा फंक्शन चेंज किया जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब हम बात करते हैं वो फंक्शंस जो आप लोग बनाएंगे, आप लोग यूज करेंगे, मैं बनाऊंगा, आप लोग यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो जो प्रोग्राम या फंक्शन यूजर बनाता है उनको यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। जैसे पावर फंक्शन है, ये हमने नहीं बनाया है। हाँ, ये पावर फंक्शन जो है हमने नहीं बनाया है, हमने क्या बनाया है, हम जो बनाना चाहेंगे वो हम यहाँ अपने प्रोग्राम में लिखेंगे। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है, ये सिस्टम डिफाइंड या प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन है। अगर हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है तो हमें खुद को डिफाइन करना पड़ता है। सो हम बनाएंगे कैसे, है ना, different different books are using different different names for the functions. Some of the books can call subroutines, some books can written as a method, procedure or subprogram. So all are the same thing. ठीक है, आपके डिफरेंट डिफरेंट बुक में अलग अलग नाम लिखे होंगे बट ऑल आर द सेम थिंग। फंक्शंस मींस, अच्छा फंक्शंस बनाते कैसे हैं आपको ये सिंटेक्स याद रख लेना है। सबसे पहले हमें डेफ डीईएफ कीवर्ड लिखना है, देन वी हैव टू बी राइट डाउन द नेम ऑफ फंक्शन, जो हम फंक्शन बनाने हैं उसका नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट्स, एंड इन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर द पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स क्या है मैं अभी प्रोग्रामिंग में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, देन कॉलम एंड द स्टेटमेंट्स। ये सिंटेक्स सिर्फ याद रखना है, जब अभी मैं कोड सिंपल सिंपल कोड लिखेंगे तो हम ये समझ में आ जाएंगे कि ये वर्क कैसे करते हैं। तो अभी घबराने की कोई बात नहीं है, आगे वाले थोड़े से वीडियो में आप सब चीजें सीख जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कीवर्ड डिफाइन की। डेफ हम इसे लिखेंगे, ये बताता है कि हमने फंक्शन बनाया है। आपके प्रोग्राम में कैसे पता पड़ेगा कि फंक्शन कहाँ बना है, तो उसको डेजिग्नेट करने के लिए डीएफ जो कीवर्ड है वो यूज किया जाता है। अभी मैं प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा आपको, वहां क्लियर हो जाएगा। फंक्शन का नाम जो होता है वो आइडेंटिफायर होता है, तो आइडेंटिफायर की प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे। आइडेंटिफायर द नेम आर द गिवन बाय द प्रोग्रामर। सो क्योंकि ये मेरा या आपका बनाया हुआ फंक्शन होगा तो आप इस पे जो मर्जी है वो नाम दे सकते हैं। जब फंक्शंस काम करते हैं तो कुछ वैल्यू अपने पास रखते हैं। जैसे मैं आपको इसी का एग्जांपल दिखाता हूं, पावर। पावर ने 2 और 3 दो वैल्यूज ली हैं जिनको इन्होंने कैलकुलेट किया है। तो ये जो वैल्यूज होती है इनको पैरामीटर्स बोला जाता है प्रोग्रामिंग की टर्म में। एंड कॉलम ये बताता है कि इसके बाद वाला जो एरिया है वो फंक्शन का डेफिनेशन है, फंक्शन जो कर रहा है परफॉर्म कर रहा है वो सारे टास्क यहाँ लिखे जाते हैं। एंड इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज रिटर्न, फंक्शन काम करना कब खत्म करे ये बताएगा रिटर्न स्टेटमेंट। ये कैसे काम करते हैं मैं अभी एक छोटा सा प्रोग्राम बना के आपको दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे फंक्शन। जैसे एक फंक्शन बनाते हैं डेफ, मान लीजिए उसका नाम रखा मैंने डेमो, और ये अभी के केस में कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने इसके पैरामीटर्स में खाली छोड़ा। फंक्शन को फिर मैंने कुछ टास्क दिया है, वो टास्क है कि वो, इसमें मैंने टास्क लिखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइन प्रिंट कर रहा है स्टार्स की। एंड इसके नीचे एक और स्टेटमेंट में लिखता हूं जिसमें मैं प्रिंट कर रहा हूं स्टार की जगह अंडरस्कोर। तो ये सिर्फ और सिर्फ नाम, ओके। And then I am going to be complete this function, that's why I am writing return statement.
ये मेरा फंक्शन बन गया। जब मुझे फंक्शन बनाना, देखो रन करूंगा, देयर इज नो एरर। अब मुझे अगर इसको कॉल करना है तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना होगा। जब मैं इसे कॉल करूंगा तो इट्स शोइंग यू स्टार or underscore. So as many time I can use the same function, it's performing the same operation. See, if I am writing 2 times, it's running it 2 times. बट कोड जो है मैंने सिर्फ एक बार लिखा है, पर जितनी बार भी मैं इसको यूज करूंगा, जस्ट सपोज कीजिए फॉर ए इन रेंज suppose 3 times, and I am calling that function 3 times. Then let's see what will happen. It's showing you the same result 3 times. So once you have created your function, you can use it repeatedly, as many times as you can use. And suppose this function is adding 2 numbers. So n is equals to int input. I am accepting a number and n1. Okay, let's run this code. Function has been created. Now I am running. It's accepting a number 10, supposed to be 20. It's showing you 30, and again it's running 30. It's showing you 80. Okay, and if I am writing 33, it's 83. So once I have created addition function, it's can be used multiple time as much as a requirement of my program. So it इससे हम ये समझते हैं कि हम रिपीटेशन कम कर सकते हैं। फंक्शन एक बार बनाया जाता है और उसके बाद हम जितना मर्जी उसको यूज कर देते हैं, कि सिर्फ मैं सिर्फ फंक्शन का नाम दे रहा हूं और ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। ठीक है, फंक्शंस की कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके हम अभी डिस्कस करते थे। तो फंक्शंस जो हैं हम 4 टाइप के बना सकते हैं। हमारे प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम फंक्शंस को 4 तरीके से बना सकते हैं। पहला है फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट नो रिटर्न, फंक्शन जिसमें कोई आर्गुमेंट मैंने नहीं दिया और उसका वो कुछ काम नहीं करेगा। फंक्शन विथ आर्गुमेंट बट नो रिटर्न, आर्गुमेंट और पैरामीटर्स बेटा इन्हीं को बोलते हैं, जिसे हम कोड में देखते हैं। ये जो आपने लिखे हैं इनको, जब फंक्शंस में इनको आर्गुमेंट और पैरामीटर्स भी बोलते हैं। जैसे इस प्रोग्राम में कोई आर्गुमेंट और प्रोग्राम आपका पैरामीटर नहीं है, तो वो हमारे रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है कि हम फंक्शंस को किस टाइप का बनाएंगे। जब अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा इसके वीडियो के सेशन के एंड में, तो आप प्रैक्टिस करके देखेंगे, तो आप डिसाइड कीजिएगा कि आपका फंक्शन इन चारों में से किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। फंक्शन विद नो आर्गुमेंट नो रिटर्न मतलब ऐसा फंक्शन जो कुछ एक्सेप्ट नहीं करता और कुछ रिटर्न नहीं करता। फंक्शन विद आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यूज, एक ऐसा फंक्शन जो एक्सेप्ट करता है बट रिटर्न नहीं करता। ए फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड return value, as the name suggesting you, a function that is accepting argument and returning value. And fourth kind of the function is there is a no argument but there is a return value, means that is not accepting any value but returning. Let's see by using some examples. It's my suggestions in a successive few minute you have to be type the same code on your Python interpreters. So that's why you can familiar with this. Thus just you have to type this function. आप इसको टाइप कीजिए और रन करा के देखिए, आप समझेंगे कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, जब हम फंक्शंस को यूज करते हैं तो यूज करने के लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म का यूज करते हैं, उस टर्म को कॉलिंग या इन्वोकेशन बोलते हैं। फंक्शन कॉलिंग मतलब फंक्शन का यूज करना। ठीक है, जरा मेरे एग्जांपल में हम समझते हैं फंक्शन कॉलिंग कहां हो रही। ये फंक्शन कॉलिंग नहीं है, ये फंक्शन डेफिनेशन है। फंक्शन कॉलिंग है ये यहाँ पे इस स्टेटमेंट को फंक्शन कॉलिंग बोलेंगे। फंक्शन कॉलिंग क्यों मैंने जो फंक्शन बनाया है वो यूज हो रहा है, इसको हम फंक्शन कॉलिंग बोलेंगे। देखिए ये भी फंक्शन कॉल है, ये भी फंक्शन कॉल है। ये टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप प्रोग्राम बनाएंगे। फंक्शन कॉलिंग का मतलब होता है फंक्शंस का यूज करना। once you have created the functions you have to use, and when you have to use you have to call that. So just
type this code on your Python interpreter and run it. Then you will find out, and you can change, perform certain operations. You can change something from here print statement. Then you will find out, and you have to be run this welcome in multiple times. Means you write down your welcome or something at something else instead of welcome to run your program. Now again let's see this program. This is again a very good program. This is a program to calculate the table. जो हमारे टेबल्स हैं वो प्रिंट करने का एक प्रोग्राम है, बड़ा इजी है, बट लेट्स अंडरस्टैंड इट हाउ. सो जो टेबल है ये कहता है कि कोई भी एक नंबर दीजिए और उसका टेबल प्रिंट करके ये आपको शो करेगा. जब आप इसको रन कीजिएगा आपके इंटरप्रेटर पर, देखिए वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कीजिए और इसको इंटरप्रेटर पर रन कीजिए और फिर समझ लेते हैं. अब लिखने के बाद, राइट करने के बाद फिर हम इसको समझेंगे. हम समझते हैं. देखिए हमारा फंक्शन जब डिफाइन होता है तो हम लिखते हैं डिव टेबल. आप फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं. देन नम, ये पैरामीटर है क्योंकि मैं चाहता हूं ये पैरामीटर जो है कोई भी नंबर हो सकता है. आप इस नंबर को यूज कीजिए और कोई भी वेरिएबल का नाम यूज कर सकते हैं. नम की जगह में एक्स वाई जेड लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है. ये बेसिकली वो वैल्यू होगी जिसकी हमें टेबल कैलकुलेट करनी है. सो सपोज कीजिए आपके पास कोई नंबर आया 4 इंट रेंज 1 to 11. टेबल प्रिंट करना है तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा नंबर को 1 से लेके 10 तक का. प्रिंट नम, और इसको रन करा के देखिए. फिर यहाँ पे नीचे देखिए n इक्वल्स टू इनपुट ए नंबर. पहले हम इनपुट लेंगे नंबर को और फिर उसको पास कर देंगे. ये पहला एग्जांपल है जहां हम फंक्शंस में वेरिएबल पास कर रहे हैं. बेसिकली ये हो रहा है, इनपुट ले रहे हैं हम एक नंबर को, वो जो नंबर इनपुट हुआ है हमने फंक्शन को उसको पास कर दिया है. हमने बोला है, कॉल किया है टेबल विद अ वैल्यू ऑफ n, और n को जब यहाँ पास करेंगे तो n की वैल्यू क्या होगी, नम में चली जाएगी. num is accepting the value of n and it will display or it will run your program to display your table. ये एक और एग्जांपल है. इस एग्जांपल में हमने क्या किया है, फंक्शन विद पैरामीटर्स बट नो रिटर्न वैल्यू. इसमें मतलब कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. जैसे n1 n2 n3 n4, मैंने कोई 4 नंबर इनपुट लिए, इन 4 नंबर को एक फंक्शन एवरेज में पास कर दिया. एवरेज जो है n1 के लिए num1 बनाया हुआ है, n2 के लिए n2 बनाया है, n3 के लिए num3 बनाया है, n4 के लिए num4 बनाया हुआ है. जब मैं इसको एक्सेप्ट करेंगे, कॉल करेंगे तो बेटा n1 की वैल्यू n1 में कॉपी हो जाएगी, n2 की वैल्यू num2 में कॉपी हो जाएगी. बेसिकली ये सारा कॉपी होके यहाँ आ जाएगा. जब ये नंबर यहाँ आ गए तो इनको ऐड करेगा, डिवाइड करेगा 4 से और एवरेज को प्रिंट कर देगा. सो दोबारा देखते हैं इस प्रोग्राम को, समझते हैं. डिफाइन में क्या होता है, यहाँ हमारा फंक्शन पहले डिफाइन होता है, फिर उसके बाद फंक्शन कॉल किया जाता है. ओके, ये फंक्शन कॉल हो रहा है. वो कॉल करने के लिए कुछ पैरामीटर्स चाहिए थे तो ये पैरामीटर्स हमने इनको पास कर दिए. फिर फंक्शन विद पैरामीटर एंड रिटर्न, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं क्योंकि आप मैक्सिमम यूज करते हैं. ये पैरामीटर भी लेते हैं और रिटर्न भी करते हैं. आपने प्रिंट फंक्शन यूज किया ही होगा, आपने सम फंक्शन यूज किया होगा, आपने पावर फंक्शन यूज किया होगा, आपने स्ट्रिंग के साथ, लिस्ट के साथ, मैनिपुलेटर्स के साथ एवरेज, मैन, मैक्स, मिन, लेंथ फंक्शंस यूज किए हैं. वो बेसिकली इस कैटेगरी के फंक्शंस हैं जहां हम कुछ उनको प्रोवाइड करते हैं और वो रिटर्न करके देते हैं. जैसे हमारे प्रोग्राम में हमने स्टार्टिंग में देखा एग्जांपल ये है पावर फंक्शन का. हम इसको कुछ पैरामीटर्स दे रहे हैं 2 + 3 और ये हमें रिटर्न कर रहा है इनका कैलकुलेशन जो हमें डिस्प्ले हो रहा है. सो ये जो फंक्शंस हैं ये एक्सेप्ट करते हैं वैल्यू और रिटर्न करते हैं. चलिए एग्जांपल देखते हैं. ये कोड है. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसको थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को, इन कोड्स को सिस्टम पे टाइप करेंगे, रिटर्न करेंगे और फिर समझेंगे कि ये वर्क कैसे हो रहा है. ये 4 कोड है, आप इनको रन करा के देखिएगा और समझ के देखिएगा. अभी मैं एक कोड लिख के आपको लाइव दिखाता हूँ जो फंक्शंस रिटर्न करते हैं. जैसे मुझे कुछ नंबर्स को सम करना है तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ सम, जो 2 वैल्यूज को सम करके रिटर्न करे. तो 2 वैल्यूज का सम करना तो 2 वैल्यूज के पास होनी चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई एम एक्सेप्टिंग a एंड b. देन सपोज x इज इक्वल टू a प्लस b. रिटर्न के बाद बेटा हम जहां पे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं या वो वेरिएबल लिख सकते हैं जिसको हमने वापस भेजना है. सो रन करा के देखते हैं. हमारा फंक्शन बन गया.
ये कह रहा है फंक्शन एक सम फंक्शन बनाया है जो दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, उनकी वैल्यूज ए और बी में स्टोर होंगी, ए और बी का ऐड होगा और वो रिटर्न करेगा। एंड सपोज पहले हम इसको स्टैटिकली रन करा के देखते हैं। सम, मुझे दो वैल्यूज का सम करना है 10 20। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये इट इज शोइंग यू 30 मीन्स 10 ए के पास चला गया, 20 बी के पास चला गया, यानी 10 पैरामीटर आर्गुमेंट ए के पास चला गया, 20 पैरामीटर आर्गुमेंट बी के पास चला गया, 10 और 20 का ऐड हुआ, एक्स में गया और रिटर्न होके आया, रिटर्न होके आया तभी हमें पास ये रिजल्ट आया। अच्छा, इसको थोड़ा सा और, अब ये स्टैटिक था, इसको थोड़ा डायनेमिक बनाते हैं। मैं दो वेरिएबल इनपुट लेता हूँ, मान लीजिए n is equals to int input। मैं यूजर से नंबर को एक्सेप्ट करता हूँ, एंटर द नंबर, और m को दोबारा लिया int input। ठीक है, ये दो मैंने नंबर इनपुट लिए हैं यूजर से, और इनका मुझे ऐड चाहिए, तो मैं ऐड करने के लिए इनको भेज देता हूँ किसके पास, सम फंक्शन के पास। मुझे एडिशन के लिए मैंने एक फंक्शन बना लिया है ऑलरेडी, तो सिर्फ मुझे उसे कॉल करना है। कॉल किस पे करना है, एन और एम की वैल्यू पे, क्योंकि एन मेरा एक इनपुट है, एम मेरा एक इनपुट है, और ये पास हो जाएगा ए और बी के पास। चला इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। देखिए ये नंबर मांग रहा है आपके पास, हमने कुछ भी इनपुट किया, फिर एक और इनपुट किया, एंटर, सो इट्स शोइंग यू 157। okay, so functions I have defined once and I can use multiple times. So this is example of functions where you can, that is accepting the argument and as well as returning the some values. So you can also create the functions. अच्छा बच्चों, एक चीज बता दें, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम स्पेसिफिक। देखिए एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चार तरीके हैं, आपके पास इन चारों मेथड में से कोई भी एक मेथड यूज करने के फ्रीडम है। आपको प्रॉब्लम मिलती है, प्रोग्राम बनाने के मिलता है, तो आप फ्री हैं, आपको जो सा भी मेथड अगर समझ में आता है आप उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। अब इस ट्यूटोरियल को खत्म करने से पहले एक छोटा सा रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब होता है एक ऐसी स्टेटमेंट जो ये कहती है कि आपका फंक्शन यहाँ पे स्टॉप होना चाहिए। तो जनरली रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है कि लास्ट स्टेटमेंट होती है। अगर हमने मिड में कहीं लिख दिया तो आपका फंक्शन वहीं टर्मिनेट हो जाएगा जहां ये रिटर्न लिखा जाएगा। आप इस कोड को जरा फिर से टाइप कीजिएगा और देखिएगा। ये मैथमेटिकल फंक्शन है, पाई आर स्क्वायर मीन्स ये एरिया कैलकुलेट कर रहा है आपके सर्कल का। एक नंबर इनपुट लिया, रेडियस इनपुट लिया, रेडियस को एरिया फंक्शन में पॉज किया, ये गया आपके पास एरिया में आर आया, एन की वैल्यू आर में चली गई, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई मैथ पाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ और जो एरिया आया उनको रिटर्न कर दिया। ए की वैल्यू बेटा यहां रिप्लेस्ड हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी ए आर में, क्योंकि हमारे पास रिटर्न फंक्शन जो है, ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है कुछ रिटर्न करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये एरिया फंक्शन जहां हमने कॉल किया है यहाँ पे एक वैल्यू आएगी और इस वैल्यू को हम कहीं स्टोर कराएंगे। तो इसलिए हमने एक वेरिएबल बनाया है ए आर टेम्परेरी जिसमें स्टोर है। आप इस प्रोग्राम को रन कराइएगा सिस्टम पे और देखिएगा कैसे, फिर इसमें कुछ चेंजेस आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ओके, ये कुछ कोड्स हैं जो आप सभी बच्चों को रन करा के देखने हैं और उसके बाद हम बात करेंगे। तो हम दो इनकी क्लासिफिकेशन को बात कर लेते हैं। कुछ जब हम पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स की बात कर लेते हैं, पैरामीटर आर द वैल्यूज प्रोवाइडेड इन द पैरेंथेसिस व्हेन इज रिटन इन फंक्शन हेडर। हम ये टर्मिनोलॉजी है, किस टर्म का यूज कहाँ करते हैं इसके बारे में हम पता कर लेते हैं। कुछ बुक्स में इंटरचेंजेबली पैरामीटर और फॉर्मल आर्गुमेंट्स का यूज करते हैं, पर हम जरा देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं पैरामीटर की। पैरामीटर्स को हम फॉर्मल आर्गुमेंट्स भी कहते हैं। जब प्रोग्राम कॉल करते हैं तो जो वैल्यू प्रोवाइड की जाती है उनको फॉर्मल आर्गुमेंट कहा जाता है, पैरामीटर कहा जाता है। Then argument is a value that is passed to a function when it is called। जो कॉल करते समय हम जिनको भेजते हैं वो आर्गुमेंट्स होते हैं। जरा इसी एग्जांपल को समझते हैं। ये मेरा फंक्शन कॉल है, n जो है मेरा आर्गुमेंट है, r मेरा पैरामीटर है। ठीक है, एरिया फंक्शन के लिए जब n जो है, क्योंकि पास किया गया वैल्यू है, इसको हम आर्गुमेंट बोलेंगे और इसको एक्सेप्ट करने के लिए जो वेरिएबल है इसको पैरामीटर। ये टर्मिनोलॉजी है जब हम फंक्शंस में कॉल करते हैं। एंड फंक्शंस कैन अल्टर ऑन म्यूटेबल टाइप्स वैल्यूज, इसके बारे में हम आगे
डिफाइन करेंगे, आगे बात करेंगे। देखिए इस एग्जांपल को ही हम समझ लेते हैं। एन जो है एक्चुअल आर्गुमेंट बोलेंगे, आर को फॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी है और कुछ नहीं है। ये अब हमारे पास हमने फंक्शंस बनाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके टाइप्स, आर्गुमेंट कितने टाइप के, अभी हमने फंक्शंस को पढ़ा है, फंक्शंस को समझा है, फंक्शंस के बारे में डिस्कस, ट्यूटोरियल में फंक्शंस के टाइप्स, आर्गुमेंट्स के टाइप को समझेंगे। थैंक यू।